کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ مے بیک ہے۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا مے بیک یہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ 2.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ میں کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے۔ ساڑی 2000 پاؤنڈ دی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے، پیٹرول پاون والا ہوندہ ہے، انہوں دھوਣ والا بھی ہوندہ ہے۔ تم مے بے لے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے۔ اللہ گلہ کر رہا ہے، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا؟ وجعل خلالہا انہارا، اس میں دریا کس نے چلائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، تیرا رب ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی شیٹ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا، حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا۔ دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی۔ یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ میری طرف آ گیا، آپ کی طرف۔ تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ایک نطفہ بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تو یہ شکلیں بنائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، اللہ بناتا ہے 3 اندھیروں میں۔ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں اور مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا، اور کروڑوں بھیڑیے، کروڑوں بکریاں، کروڑوں شیرنیاں، کروڑوں ہاتھی، چیتے، بیل، گائے، گدھے، کھوتے، کھوتیاں، ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا، کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 کٹھے ہوتے ہو، کنڈی لگا دو، پردے گرا دو، بھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ولا خمسة، 5 کٹھے ہو جاتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، اکیلے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اینما کانوا، جاؤ جہاں جانا ہے، زمین کی تہ میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ، خلاؤں میں گم ہو جاؤ، آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ، جدھر جاؤ گے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ جائیں گی،
वज़ल बिहार फुज्जिरत, समंदरों में आग लगा दी जाएगी। इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन को हिलाया जाएगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अपना सब कुछ ये बाहर निकालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान बोलेगा ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आज वो दिन आ गया। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आज अल्लाह आ रहा है, आज अल्लाह आ रहा है। ओल्डम में तो मैं देख रहा था, आज वो खुद आ रहा है। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम भी आ रही है। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जन्नत भी आ रही है। वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, और तराजू भी आ रहा है मेरे आमाल को तोलने वाला। वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, एक राई के दाने के बराबर भी अच्छा या बुरा किया होगा तो अल्लाह तोल के तेरे हाथ में पकड़ा देगा। ये तेरा सच है, ये तेरा झूठ है, ये तेरा अच्छा है, ये तेरा बुरा है, ये सब कुछ अल्लाह ताला खोल के दिखा देगा। यहाँ पर्दे डालता है, यहाँ पर्दे डालता है, और वहाँ पर्दे खोलेगा। यौम तुबला सराइर, आज राज फाश कर लिए जाएंगे, आज राज से पर्दे उठा दिए जाएंगे। और वलक़द जिअतमूना फुरादा, अकेले अकेले आएंगे। व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा, हर आदमी अकेला आएगा, नंगा आएगा, औरत है या मर्द है, नंगा आएगा। कामयाब हुआ तो अल्लाह उससे कपड़े पहनाएगा, नाकाम हो गया तो नंगाई जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी हम पर आफत आने वाली है जिसको मौत कहते हैं। उसके लिए सुबह से शाम तक ना सोच है ना तैयारी है। तो भाइयों मिल के ये सोचें कि कैसे ज़िंदगी गुजारें कि जब मरें तो अल्लाह हम पे राज़ी हो, जब मरें तो जन्नत के फरिश्ते आएं। हम लोग 1982 में इंग्लिस्तान गए हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साहब थे। उनकी आदत ऐसी थी कि गोरों को भी दावत देना शुरू कर देते थे। तो एक गोरे को दावत दी तो उसने कहा, इस्लाम से मुझे प्यार है लेकिन मुसलमानों से नफ़रत है। इस्लाम अच्छा मज़हब है और मुसलमान बुरा है। दूसरे साहब ने कहा कि पहले अमली तौर पर मुसलमान हो जाइए तो फिर हम भी मुसलमान हो जाएंगे। इस तबलीग की मेहनत के ज़रिए से एक तो पूरा दिन सीखने की दावत दी जा रही है और हम पहले पूरे दीन को सीखे और अगली बात कहने के लिए जहन बनाया जा रहा है। इस सारी दुनिया के इंसानों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाना पड़े तो हमें जाना है। ये अल्लाह की तरफ की दावत हमारी जिम्मेदारी है। इसी पर तो ये सारे मर्तबे और फ़ज़ाइल है। इस वक्त इस्लाम में जो देर हो रही है हमारी वजह से हो रही है। नियागर आबशार पर एक शख्स का मुसलमान होना। हम 2 साल पहले कनाडा गए। हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबशार गिरती है जिसको नियागर आबशार कहते हैं। लाखों इंसान वहाँ पर देखने के लिए आए होते हैं। हम उसके करीब से गुजर रहे थे तो नमाज का वक्त आ गया। हमने यही नमाज पढ़ने का इरादा किया। हमने एक तरफ होकर अजान दी और चादरें बिछाई तो एक अमेरिकन कुर्सी पर बैठा देखता रहा। हमने उसी आबशार की नहर से वज़ू किया और नमाज की तैयारी करने लगे तो वो कहने लगा, आप मुसलमान हैं? हमने कहा, हाँ हम मुसलमान हैं। तो उसने कहा, मेरे भी कुछ दोस्त मुसलमान हैं। जब हम नमाज से फारिग हुए तो हमारे करीब हो गया। कुछ साथियों ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो वो कहने लगा, मेरा दिल तो चाहता है, शायद मेरी बीवी न माने। तो मैंने कहा कि कोई और बीवी अल्लाह ताला दे देगा, इसकी क्या बात है। तो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लामिक सेंटर का पता दे दिया कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, इंशाअल्लाह मज़ीद रहनुमाई मिल जाएंगी। कैलिफोर्निया में एक लड़की का इस्लाम कबूल करना। कैलिफोर्निया में एक अरब लड़का था, पगड़ी कुर्ता पैजामा पहने था। एक लड़की आ गई और कहने लगी कि तुम कौन हो? कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ। उस लड़की ने पूछा, ये लिबास कैसा है? उसने कहा कि ये मेरे नबी का है। तो उस लड़की ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत लिबास है, दूसरे मुसलमान ये क्यों नहीं पहनते? वो अरब लड़का बोला कि ये उनकी गफलत और कोताही है। तो उस लड़की ने पूछा, इस्लाम क्या है, मुझे बताओ तो सही। 5 मिनट की बात की तो वो मुसलमान हो गई। इस वक्त जो देर हो रही है ये हमारी तरफ से हो रही है। हम तबलीग को अपना काम बनाकर दीन सीखकर पूरी दुनिया में फैलाए जाए तो मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे। अब आप बोलिए और बताइए
कौन कौन तैयार है इसके लिए? अब आपकी बारी है। हमने अपनी बात अर्ज कर दी, अब आप फरमाइए कि कौन भाई तैयार है 4-4 माह के लिए। रावण में एक जमात ने बलूचिस्तान से खत लिखा कि जब उन्होंने अजान दी तो बस्ती के लोगों ने कहा कि आज यहाँ कोई 100 साल बाद अजान दी गई है। यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान का हिस्सा है, साथ ही पाक लगा हुआ है, सारी नापाकियाँ यहाँ हो रही है। तो नाम रखने से गुलाम रसूल बनता है? नाम रखने से गुलाम रसूल नहीं बनता, गुलाम मोहम्मद से गुलाम नहीं बनता। वजूद को गुलामी में डालने से गुलाम मोहम्मद बनता है। एक अरबों की जमात गई तजाकिस्तान, तो जब वे निकलने लगे तो कहने लगे आज से 700 साल पहले हमारे पास एक अरब आए थे, वो हमें कलिमे की दावत दे गए थे। आज 700 साल बाद तुम्हें देखा है, अल्लाह के वास्ते अब दोबारा 700 साल बाद तक मत आना, बल्कि बार बार आते रहना। सारे रास्ते आज़ाद है। मुसलमान कलमे को नहीं जानते, कोई पता नहीं। कलमे का 100 दफ़ा विर्द करते हैं, लेकिन कलमा ज़बान पर नहीं चढ़ता और रोते हैं और दीवारों से टक्करें मारते हैं कि हमें कलमा क्यों नहीं आता। उनको किसने सिखाना है? कौन ये जिम्मेदारी लेगा? हमारे जिम्मे नहीं, मेरे जिम्मे नहीं, कोई नहीं, तो फिर किसके जिम्मे है इतनी बड़ी जिम्मेदारी? सबसे बड़ा अजीमुश्शान इंसान जो इस कायनात का सरदार है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप इस फिक्र के लिए पत्थर खाते फिर रहे हैं और दांत तुड़वा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, काफिरों की गालियां सुन रहे हैं, कमर पर ओझड़ी लादी जा रही है, गर्दन पर चादर डालकर मरोड़ा जा रहा है, पत्थर पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही है, जख्म लग रहे हैं, फिर तबलीग के लिए, सिर्फ तबलीग के लिए। और अब इसी उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग काम तुम्हारा है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है।